Welcome all to Healthy Me, Happy Me. And this is our first session of the 3 weeks challenge to nourish and flourish. This is episode 26 of our channel. And we welcome our guest today, CA Anchal Podar. And I'm your host, CA Vinita. Healthy Me, Happy Me is a social initiative. It was started with an intention of giving back to society and create health awareness and culture of healthy habits. अब तक हम ऑलमोस्ट दिस इज आर 26th एपिसोड और हम 25 एपिसोड्स कर चुके हैं कंडक्ट नॉलेज सेशंस ऑन डिफरेंट टॉपिक्स एंड डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ द होलिस्टिक वेलनेस और हम साथ में उसी नॉलेज को इम्प्लीमेंट करने के पर्पज से हम हैबिट बिल्डिंग वीक्स भी रन करते हैं थ्रू व्हाट्सएप कम्युनिटीज वी आर प्रेजेंट ऑन यूट्यूब इंस्टा एंड व्हाट्सएप चैनल जिनके लिंक्स मैं सेशन के एंड की तरफ आपके साथ में शेयर करूंगी यू कैन जॉइन अस एनी टाइम एनीवेयर एंड you have you can view more than 125 videos on our YouTube channel, which covers the recordings of our previous sessions and some short videos. About our guest today, Anchal Podar. She's a health fitness enthusiast. She's on a mission to make them aware medicine-free life. After her treatment from the serious disease, she opted for alternative healing modalities. She's also a Josh Talk speaker. During the process, she has learned Heal Your Life affirmations, gratitude writing, forgiveness journaling, Ho'oponopono prayer, Dr. D. Martini charges dissolution, Vipassana meditation, Sun Yoga, Sudarshan Kriya, Agnihotra Home, etc. मजल बहुत ज्यादा इतना तो हम कब कर पाएंगे. She's also learned about holistic health and nutrition from Imana Wellcure. By profession, she is a chartered accountant for 2 decades and an advocate for last 3 years. She has also earned a degree of insolvency professional. She's a graduate of scholarship program of Goldman Sachs Women Entrepreneurship Program. इससे ज्यादा I think आंचल अब आप ही बात कर पाएंगी. Over to you directly. Thank you, Vinita, first of all, for running such a platform. I know you are a banker and a mother and a housewife. Every facet of life you are doing so well, but this is a platform which you have created and you're working hard to run the groups and manage the things. So hats off to you, and मेरा दिल से thank you है that you have created such a platform. Thank you. So Thank you. about the session, brief introduction. So ये तो formal introduction विनीता ने दिया. मैं lifelong learner हूँ. I like to learn lot many things. And recently I got a book in my hand because आप देखेंगे अलग अलग modalities अपनी healing करने के लिए मैंने देखिए डिग्री पढ़ाई तो बहुत करी बट वहां पे कभी नरिशमेंट और हेल्थ ये सब कभी सिखाया पढ़ाया ही नहीं गया. And then I felt trying different modalities of healing, of health, and I got to know different concept. But yeah, for health, I had to go one way. For mental fitness, one way. For emotional health, one way. But all things combined, I could find at one place. And this was this book, The Sattvic Revolution. So let me take you to the PPT. And so this is a book. This is written by Subha Saraf and Harshvardhan Saraf. They are running the Sattvic movement website also. So I got this key. जैसे लाइफ में अपनी चाबी मिल जाती है और दरवाजे अनलॉक हो जाते हैं ना. So I got this book and this has everything complete in it. So Vinita and I discussed and she was very happy with the idea that 21 days we'll go through these 7 life-changing habits to discover peak of our health and joy. I'll try to complete. We have got 3 live sessions. One is today, 25th January. One is on 2nd February and one is on 16th January. These would be the 3 live sessions and it will be followed with the challenges and the habit formings on the WhatsApp group so that this becomes a habit and we see a visible result after 21 days. Right, Vinita? Right. So are we all ready? A little about the habit building challenge that Anchal just mentioned. We'll keep 5 simple rules जो आप generally भी अपनी routine में आप follow करते ही होंगे, but एक commitment के साथ में हम 21 days with community and with commitment हम वो 5 rules follow करेंगे. One of the rule on clean eating, उसके लिए वो rule है clean eating, but उसमें आप खुद के rules बना सकते हैं. So let's learn from Anchal what can be the different ways of healthy sattvic clean eating in starting today's session, and then we can decide our rule there. Other rules could be 2 liters of water intake every day. Third rule,
30 minutes of any kind of physical movement. Again, physical movement of your choice. Fourth habit is either book reading, something that you are doing for your emotional well-being. So it could be book reading, it could be following any of your hobby or passion. मुझे singing पसंद है, डांस पसंद है, मैं 15 minutes उस चीज को डेडिकेट करूं, बुक रीडिंग करूं, स्किल डेवलपमेंट के, आई डू समथिंग फॉर माय स्किल डेवलपमेंट. Fifth rule is another 15 minutes for your spiritual development. It could be meditation, pranayam, or reading some spiritual books, or your routine puja or anything. So details and clarity, again, it will be given on the WhatsApp group. Let's continue with the Sattvic Revolution with Anchal. So first disclaimer, what I have prepared is completely from the book. I have not added any of my thoughts or feelings. Secondly, this book is written in a very simple language, very practically explained with diagrams, tables, and all that in Indian scenario. They are not from America or copying some other country. वो एकदम Indian scenario में पराठा और भुजिया की बात बताते हैं. तो it's like very correlate कर सकते हैं हमारे daily routine से. So I welcome you all. This is a book, The Sattvic Revolution. So first of all, if we can take a paper and a pen and note down what is our health as on date, so that we can compare after 21 days क्या improvement हुआ. सबसे पहले एक चार्ट में हम लोग हर क्वेश्चन, there are 12 questions. I'll read out the question and as on date जो आप सेट में हो, 0 अगर never, 1 or 2 कभी कभी, and 4 marks if you will give to that question if it is always. Am I clear on that? Can I get a thumbs up on the chat box? So shall I start with the question 1? My bowel gets cleared every day without any force or external support. मुझे every day potty होती है without isabgol or any tablet or any warm water. Then give this 0, 1, 2, 3, 4 points to yourself to this question. Next, is my weight ideal? मेरा वेट ना ज्यादा है ना मेरा वेट अंडर वेट है, तो ना मेरा ओवर वेट है ना मेरा अंडर वेट है. 0, 1, 2, 3, 4 पे अपनी रेटिंग देंगे. तो फर्स्ट में इफ आई वुड गिव माई सेल्फ अ 3, मे बी सेकेंड में आई विल गिव अ 2. आई हैव अ क्लियर स्किन, नो एक्ने और स्किन प्रॉब्लम्स. हियर आई वुड गिव माई सेल्फ अ 4. सो एवरीबडी स्टार्ट मेकिंग अ नोट, बिकॉज इसके टोटल से हम 21 डेज बाद कहाँ पहुंचेंगे. 16 फरवरी को वी विल मेक अ जजमेंट कि हम जो ये टाइम, प्रेशियस टाइम ऑन अ सैटरडे आफ्टरनून हम इस सेशन में दे रहे हैं, तो इसके रिजल्ट हमें मिले कि नहीं मिले. फाइन. नेक्स्ट, आई फील हाईली एनर्जेटिक थ्रू आउट द डे. इट्स नॉट डल और ड्राउजी, मुझे पूरे दिन बहुत एनर्जी लगती है. तो देन आई गिव अ 4 टू माई सेल्फ. बट समटाइम्स लगती है, समटाइम आई एम डाउन, देन इट वुड बी अ 2. एंड आई एम ऑलवेज लेथार्जिक, लो इन एनर्जी, देन इट वुड बी अ 0. Members, please start giving yourself, आजू बाजू वाले का नहीं, हम अपनी हेल्थ का चार्ट बना रहे हैं. It's not with any blood test report or MRI, we can assess our health ourselves. The next question is, I experience a strong sense of hunger once or twice a day. कम से कम दिन में 1 या 2 बार. अपने को तो 7-8 बार भी लगती है, सुबह से चालू होता है बिस्कुट से, वैसे नहीं. स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ हंगर वंस और ट्वाइस अ डे, जब मेरे को शेर, कुत्ते, बिल्ली सब पेट में दौड़ रहे होते हैं एंड मे बी मैं सब कुछ खाने को तैयार होती है, ऐसी हंगर वाली फीलिंग कम से कम दिन में 1 या 2 बार मुझे अगर आती है, देन गिव अ 4. अदरवाइज इट्स अ 0, 1, 2, 3. So the next question, 6th question is on this is, I experience a deep sleep at night. जो मेरी नींद है वो बहुत गहरी है. जैसे ही मैं बेड में लेटती हूँ, मुझे 2 मिनट में फटाक से नींद आ जाती है. नींद बहुत गहरी होती है, मेरे को मोबाइल, किसी का सहारा नहीं लेना पड़ता है सोने के लिए. रात में मेरी कई बार नींद उठती है, खुलती है, ऐसा नहीं है. सो आई एक्सपीरियंस अ डीप स्लीप एट नाइट. 7th क्वेश्चन इज, नो पार्ट ऑफ माई बॉडी कॉज फॉर माई अटेंशन. मतलब मुझे यहाँ पे दर्द महसूस हो रहा है, मुझे यहाँ अनकंफर्टेबल लग रहा है, मुझे यहाँ पे मसल पेन है, यहाँ क्रैम्प है. सो दिस इज अ बॉडी कॉलिंग आउट फॉर अटेंशन. सो अगर कोई अटेंशन नहीं मांग रही, देन इट्स अ 4. बट अगर 1-2 जगह है, मुझे यहाँ पे मसल पुल, क्रैम्प कुछ भी है, देन गिव अ 2. और बहुत सारी जगह है, देन 0. इज इट मेकिंग सेंस? Then the next question, 8th question is, I feel a sense of joy and find myself smiling and laughing throughout the day. मैं पूरे दिन घुर्राई हुई, गुस्सैल और हर जगह पे फॉल्ट नहीं फाइंड कर रही थी, बट आई एम स्माइलिंग, लाफिंग ऑन माई ओन. मैं खुश हूं, मेरा खुशनुमा स्वभाव है. सो दिस गिव अ 4. बट समटाइम्स 2, नेवर, ऑलवेज खड़ूस, 0. I wake up in the morning with excitement, looking forward for my day. When I get up in the morning, I look forward for the day. Wow, आज क्या सुंदर दिन है, आज तो मैं ये सब करना वाली हूँ.
And when I am in the bed, उठ के भी क्या करूंगी? Then give a 0. Otherwise, it's a energetic day you are looking forward for, then a 4. 10th question is, I am able to easily let go of unpleasant things that happen to me. Day in and day out हमारे साथ बहुत सारे unpleasant events होते हैं, but हो जाते हैं. But am I able to let that go, or I keep on holding it? So if I am able to easily let it go, it's a 4. Many a times I keep the grudge, then it's a 2, or I always keep it for long, many years, then it's a 0. So rate yourself accordingly for this. Question 11 is, my mind is stable and it is not easy for someone to make me angry or annoyed. वो बाहर से आके मुझे externally गुस्सा दिला जाए, तो ये स्वभाव में I'm still working in progress. So इसमें I am a 3, but you can rate yourself according to you. And I feel genuine love for my close family and friends. So it's a 4 for me here. You can make 2, 0, 1, 2. Okay. Now everybody is done. So let's make a total. What is our health chart as on today? So that score we will note down. Make a total, make a total. किसको calculator की जरूरत पड़ रही है? ठीक है. I think everybody would have done the total by now. हाँ भाई, सीए के सेशन में आए हैं तो इतनी तो हम कर ही Yes. लेंगे. Agreed. So now it's the time to total. Let's see. If our score is between 40 to 48, we are in the peak of our health. Congrats! Your score is in the range that indicates that your current approach to life is working exceptionally well for you. Anyways, if it is between 25 to 39, it is an average health. The score in this range is there is a room for improvement. Fortunately, by having these 7 habits, जो हम इस book में करने वाले हैं, you can make a significant change in your life. And if it is between 0 to 24, it is a poor health. The score in this range, you are facing health issues and experiencing overall low well-being. अगर ऐसा है, तो आपका ये range you can improve by inculcating these right habits. In a short period, you will see amazing results. So are we ready to take up this challenge and see ourselves on 16th of February again with a new increased total wherever we are, right? Yes, I'm ready. Me too. I'm also taking up this challenge with you all. So अगर हम peak of health में होंगे तो इसका क्या meaning है? हमें खूब सारी एनर्जी होगी, उछलते कूदते जैसे बच्चे होते हैं ना, पीक ऑफ देयर हेल्थ में होते हैं, यहाँ से कूदे वहां से आए, थकते ही नहीं है. मदर थक जाती हैं, घर वाले थक जाते हैं, बच्चे नहीं थकते. क्यों? Because they are peak of their health, tons of energy, clear skin, no pimples, no khujli, nothing. Weight is ideal, body is clean, mind is calm, कहीं पे भी पेन नहीं है, and they have ability to let go, deep sleep, strong hunger, excitement for new day. देखा ना बच्चों को स्कूल जाते हुए कैसे दौड़ते हुए जाते खुशी खुशी से. क्या हम ऐसे ऑफिस जाते हैं? वाह आज तो क्या मस्त दिन होगा. So joyful laughter. So this is what you experience in peak health. And when we reach in this range, we will definitely feel all of these. Right? So अब ये पाना कैसे है? थ्योरी तो देख ली, बट करना कैसे है? इसके लिए there is first step. It is habit number 1, keep a clean body within. So what do you mean by this? I have got this vase and there is something brown कुछ दिख रहा है, glass का transparent vase है. I'm trying to wipe it. इसको साफ कर रही हूँ, but ये साफ नहीं हो रहा है. Can anybody put in the chat box what is the reason? I would like to know the reason कि ये क्यों साफ नहीं हो रहा है. मैं तो इतना गीला कपड़ा, सूखा कपड़ा, साबुन का पानी, ब्रश सबसे साफ कर रही हूँ. So members, Yes, Anchal. can we put in the chat box why is this vase not getting cleaned? I'm wiping it so well, फिर भी ये साफ क्यों नहीं हो रहा है? Any? आप एक बार शायद अपनी स्क्रीन हाँ, right. Internally बंद clean, करके, right. Internally हाँ. clean नहीं है, इसके लिए नहीं हो रहा है. ठीक? So the reason is we are putting day in day out अच्छा वाला face wash, अच्छी वाली cream, night cream, serums, but ये अच्छे से चमक क्यों नहीं रहा है? जब हम internally clean हो जाएगा तो बाहर भी दिखेगा, right? So this we understand. Girls तो सबसे पहले समझ में आ जाता है कि स्किन में बाहर से अच्छा दिख रहा है तो बाहर का एप्लीकेशन हेल्प नहीं करेगा, बट इंटरनली ये वाज को क्लीन कर देंगे तो वो बाहर दिखेगा. What is the reason why our body becomes dirty from inside? So we understand the simple process of digestion. First of all, we eat, we swallow, we bite, and the food begins with the digestion process.
It passes through the stomach, intestine, broken into small particles. Then from there, the vitamins, minerals, energy is extracted. And the leftover, which cannot be used by the body, is expelled from the body, right? We all know, class 5, 6 में पढ़ा था digestion process, ठीक है? But this undigested food, which remains in the system, forms a thick layers on the wall of the intestine. And slowly this becomes toxins. Ayurveda में, this is called as ama. And 90% of the diseases which is caused is due to this toxins in the system. हमारे ही सिस्टम में ये जो डिजीजेस है, हेडेक हो रहा है तो उसका रीजन भी यहाँ ही पे टॉक्सिन्स है, ठीक है? क्लियर स्किन, खुजली, एक्जिमा, ये सब भी हो रहा है तो उसका रीजन पेट में टॉक्सिक है. एसिडिटी हो रही है तो पेट में टॉक्सिन्स है. तो दिस टॉक्सिन्स ओवरलोड इनिशियली हमको बहुत स्लो सिम्टम्स देगा, लाइक लेथार्जी, ब्लोटिंग, वेट गेन, टायर्डनेस, एक्ने या ब्रेन फॉग, छोटे छोटे सिम्टम्स, ज्यादा कुछ नहीं. But continue of this toxin in the system leads to chronic lifestyle diseases like diabetes, hypertension, skin issues, digestive issues. So these are the diseases which has not come in the system overnight, but slowly and gradually it has developed. And the Ayurveda explains it very rightly that this 90% of the diseases are caused by the accumulation of toxins, that is the ama. The screen is frozen. नहीं, this is अभी करंटली मुझे हैबिट 1 वाला स्लाइड दिख रहा है. नाउ हु इज द वर्ल्ड्स बेस्ट हीलर? राइट. सो अब ये बॉडी में टॉक्सिन्स है, तो क्या हमारी बॉडी को ये टॉक्सिन निकालने नहीं आते हैं? अब आप जानो कि अभी कभी हड्डी टूट जाती है तो डॉक्टर प्लास्टर बांध देता है, कोई दवाई नहीं देता है, प्लास्टर बांध देता है और वो बॉडी अपने आप वो हड्डियां जोड़ लेती है, राइट? वी ऑल नो दैट. वो प्लास्टर लगा देता है कि बस इसको इस पोजीशन में रखेंगे, इसको मूवमेंट नहीं मिलेगा तो ये अपने आप 1 महीना 2 महीना में अपने आप हड्डियां जुड़ जाएंगी. So there is something inside us which is the world's best healer. Chinese लोग इसको बोलते हैं chi, Greeks बोलते हैं pneuma, Egyptian में ka, science बोलते हैं homeostasis and medical में बोलते हैं life force. And prana shakti is the word which is used by the our shastra. So prana shakti is something which is which body is managing on its own. Are we breathing? कॉन्शियसली हमको सांस लेनी पड़ रही. नाइस. हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम, हार्ट से सारा ब्लड सप्लाई, दिस इज हैपनिंग ऑन इट्स ओन. एंड सिमिलरली रेस्पिरेटरी, नर्वस, digestive, this is all vital systems happening on its own. The disease cell का destroying, fighting for its survival, broken bone का joining, everything is happening. We are not putting any effort on that, right? So this is what our Pran Shakti is doing, and this is the world's best healer. हम बहुत fancy क्लिनिक में जाने की जगह, if we depend on this, the world's best healer, what magic it can show. ठीक है, बोन तो जोड़ी इतनी ही है, आज एक चोट लगती है, कट लगता है, उसको भी छोड़ देंगे तो वो खुद से ही भर जाता है, बन जाता है, ठीक है ना? So we all trust our प्राण शक्ति, but क्या आप जानते हैं, where do you know कि it can remove the toxins, but it cannot do 2 things at a time. One thing, the digestion process. We are keeping day in, day out, entire day, morning से start, चाय, बिस्कुट, नाश्ते का टाइम, मिड मील, मील, इवनिंग स्नैक्स, डिनर और रात का दूध, चाय. सो इतने टाइम कंजम्पशन से हमारी 70 to 80% ऑफ द प्राण शक्ति इज गेटिंग इन्वॉल्व इन डाइजेस्टिंग व्हाटसोएवर इज पुट इन द स्टमक. सो हाउ डू यू थिंक कि वो प्राण शक्ति वहां से हट के हीलिंग पे जाएगी? अगर बॉम्बे से सूरत का जो हाईवे है उसमें बीच में गड्ढे हो रखे हैं, पॉट होल्स, राइट? एंड द कार्स आर कमिंग, वन साइड ट्रैफिक चालू ही है. सो हाउ विल द एसएमसी पीपल, म्युनिसिपैलिटी पीपल वहां पे बोर्ड लगाए बिना कि यहाँ पे मुझे रिपेयर करना है, वो ठीक कर पाएंगे वो पॉट होल्स को, राइट? सेम वे when the road is busy and the food coming in, Prana Shakti is not able to mend this, is not able to remove these toxins. And the Prana Shakti takes time to clean, repair, heal and maintain. Right? So far so good? Yes. So let's move forward. I'm sorry, मैं अभी अनम्यूट और वीडियो अनम्यूट करना और वीडियो अभी फिलहाल पार्टिसिपेंट्स को नहीं अलाउ कर रही हूँ फॉर सम सिक्योरिटी रीजंस. सो अब क्या करें? प्राण शक्ति का तो रीजन मैंने आपको समझा दिया कि वो पूरे दिन बिजी होने से शी इज नॉट एबल टू हील जहां पे उसको ठीक करना है. तो फिर हमारे पास एक पावरफुल डेली क्लेंजिंग टेक्निक है
व्हाट इज दैट? बट वो समझने के पहले पहले आप ये समझ लो, बस आप आज एक दिन कर दोगे तो नहीं होगा. इट हैज टू बी, इट्स अ वेरी स्मॉल स्टेप बट इट हैज टू बी डन कंसिस्टेंटली. ठीक है? तो वो डेली क्लेंजिंग कैसे हो सकता है? वॉट यू ईट इज एज इंपॉर्टेंट एज वेन यू ईट इट. राइट? अब मैं रात में 12 बजे ऑफिस से आती हूँ, रात में 12 बजे आके मेरा डिनर करती हूँ, दिस इज नॉट राइट. उसके रीजंस आगे समझाती हूँ. But the book very clearly says कि what you eat is as important as when you eat it, right? So the time of eating is very important. Like the Jainism says, eat by the sunset, or 1 hour from the sunset, we must be done with the dinner and allow the body to start with the digestion and then with the healing and cleansing. Have we ever understood how our digestive fire, the Jathar Agni, हमारे पेट में जो अग्नि है जिसे डाइजेशन होता है, how is it connected to sun? With the sunrise, it is on the rise, and with the sunset, it falls. So same way, if we are having a dinner at 10 p.m. in the night, the Agni is low, Jathar Agni is low, and so it takes 8 to 9 hours in digestion. So if we have dinner at 10, up till 7 a.m. in the morning, it is just digesting. Our body is just digesting, and it gets up till 7 to 9, only 2 hours to cleanse the system, right? Instead, if we just shift this dinner time to 7 p.m., as a Jathar Agni is strong in the system, we'll be able to digest fast. So we are done with the digestion up till 3 a.m. in the morning, and then this body 3 a.m. to 9 a.m. This assimilation, and this is taught in the 6th 7th standard कि our body में जब रात में assimilation होता ही है, हमारे पास जितना भी लाइट आ गया है, जो भी है, मैं रात में उठता हूँ, दिन में सोता हूँ, बट बॉडी में साइंस की बुक में अभी भी यही पढ़ाते हैं कि assimilation का टाइम रात में ही होता है. So this cleaning hours, it starts 3 a.m. in the morning to 9 a.m. So we are getting 6 hours. See, सिर्फ यहाँ पे 3 घंटा चेंज करने से हमारे 4 आवर्स बॉडी को क्लीनिंग के लिए ज्यादा मिले. उसमें वो हीलिंग भी करेगा, क्लीनिंग भी करेगा, एंड टॉक्सिन सिस्टम से निकलेंगे. राइट? वन पावरफुल टेक्निक इज टू हैव अर्ली डिनर्स as a digestive fire is strong, and the bonus suggestion is that getting up next day in the morning, have a alkaline juice like ashgard का या लौकी का. ashgard is what she promotes the most कि वो मॉर्निंग में पीने से इज द बेस्ट बोनस सजेशन. तो अर्ली डिनर किया जठर अग्नि के साथ, हमने अपने सन टाइम को देख के, एंड मॉर्निंग में उठते ही हमने एशगार्ड का या ऐसे एक अल्कलाइन जूस बना के पिया. नहीं तो कुछ नहीं मिल रहा है तो कोकोनट वाटर, बट दिस विल मेक द सिस्टम, जो हमने पूरा रात में फास्ट किया है वो ब्रेक होता है बहुत अल्कलाइन जूस, एंड दिस विल सिंपली गिव दिस हैबिट नंबर 1, इंटरनली क्लीन द टॉक्सिन्स एंड गिव आउट बेस्ट रिजल्ट्स आफ्टर 21 days. राइट? So let's go ahead to the next step habit, and that is eating living and wholesome and plant-based. So what is living, what is wholesome, what is plant-based? Let me go through this. There are lot of, not the truth which is told by the packaged food companies never want you to understand this thing. कि हम लोग स्कूल गए, फॉर्मल एजुकेशन लिया, मेरे पास जो डिग्री भी अच्छी भली हो गई, जो डॉक्टर्स होते हैं, जो न्यूट्रिशन, उनको भी न्यूट्रिशन नहीं पढ़ाया जाता. उनके पास पूरे 8 साल 6 साल 10 साल में सिर्फ एक न्यूट्रिशन की बुक पढ़ाई जाती है, सिर्फ एक न्यूट्रिशन की बुक, एंड हम उनको जाके सरेंडर हो जाता है, डॉक्टर साहब आप बोलो वो मैं खा लूं. ठीक है? तो हमको क्या कभी सिखाया व्हाट इज द बेस्ट फूड फॉर अवर बॉडीज टू थ्राइव, जो हमको लाइफ लॉन्ग हेल्दी रखेगी टिल द एंड ऑफ अवर लाइफ? So the answer is eating living food, wholesome food and plant-based food. The habit number 2 is what will give you this health. So what is living food? Living food is farm to kitchen. मतलब this is the example shown. ये farm से आया directly मेरे kitchen में, right? So this is a living food. Living food rots fast. ये केला मैं कल लेके आई थी और 2 दिन बाहर रहने दूंगी तो 7वें दिन तक तो ये it will rot fast, right? And living food doesn't have a टीवी कमर्शियल. मैंने एड पे दूसरे एप्पल का एड देखा है, इस एप्पल का एड देखा नहीं है, इस बनाना का एड देखा नहीं. हमारा बनाना ले लो, बहुत है, इसके एडवर्टिजमेंट आता नहीं है. उनको फार्मर को टीवी कमर्शियल पे खर्च करने का पैसा नहीं है. तो दीज आर द 3 रूल्स. यू गो टू द मार्केट एंड यू कैन मेक आउट दिस इज अ लिविंग फूड और नॉट. तो क्लासिफाई योर फूड फर्स्ट वेदर इट इज लिविंग फूड. एज अगेंस्ट टू दिस इज अ हाईली प्रोसेस्ड फूड, जो कहाँ होता है, मैन्युफैक्चर होता है, फैक्ट्रीज में बनता है, लैबोरेटरीज में बनता है, बॉटल में आता है, पैकेट में आता है, फ्रोजन होते हैं, कुक्ड पराठास, रेडी टू ईट पराठा, निकाला फ्रिज से खा लिया.
ठीक है? So these are the food that is made in the factory. So these are highly processed food. And the food companies don't want you to know these two things. So what are these two things? Two secrets. Let's unfold it today. The two secrets. First, that the packet food has more additives than we are made to believe. Like being a tomato season, I made a sauce from this. And within 7 days, if I left it outside, उसमें टोमेटो नीचे सेटल हो गया, पानी ऊपर आ गया, एंड 7th डे में तो ऊपर मोल्ड एंड फंगस भी मुझे इस टोमेटो का जो मैंने प्यूरी बना के घर पे बनाया हो गया. मैंने ग्लास जार में बाहर रखा हुआ था 7 days. एंड दिस टोमेटो बॉटल ये बाहर रहता है मेरे घर में, 2 साल की इसकी एक्सपायरी है. ये टोमेटो बॉटल, ये टोमेटो से केचप बनाया, एंड दिस इज हैविंग दिस मच ऑफ शेल्फ लाइफ. हाउ? इसमें कहीं टोमेटो नीचे नहीं गया, पानी ऊपर नहीं आया, ऊपर मोल्ड नहीं आया. Have you ever thought why? Because it has lots of preservatives and synthetic chemical. Why is it used? ताकि वो कलर में ब्राइट दिखे, उसमें फंगस की ग्रोथ नहीं हो, एंड आर्टिफिशियल टेस्ट लाइक चेरीज, वैनिला, टोमेटो, इसके भी आर्टिफिशियल फ्लेवर्स डाल दिए जाते हैं, सिंथेटिक जो लैब में बनते हैं. और दीज प्रिजर्वेटिव को होने से ही इसकी शेल्फ लाइफ 2 years है. मेरा टोमेटो की शेल्फ लाइफ 7 days भी नहीं थी. राइट? सो आप इसको लिविंग फूड बोलोगे या इसको लिविंग फूड बोलोगे? किसको? सो दीज आर डेड फूड एंड दिस इज द लिविंग फूड. एम आई क्लियर ऑन दिस? सो रेडी फॉर अ टेस्ट? यस अंचल. चलिए. आप हमें स्कूल की याद दिला रही हैं. क्या? आप हमें स्कूल की याद दिला रही हैं. हाँ, टेस्ट लेके. तो मैं सेकंड टेस्ट भी बता देती हूँ, उसके बाद बच्चों का टेस्ट लेती हूँ. जी जी बिल्कुल. सो पैकेज फूड्स आर इंजीनियर्ड फॉर एडिक्शन. उनकी बहुत बड़ी एक फोर्स लगी होती है टू सी, क्योंकि कभी भूख लगी थी, एक चिप्स उठा लो, बस 1-2 खा के छोड़ दूंगी, तब तक खाना बन जाएगा, खाना खा लूंगी. बट कई बार हुआ व्हाट सुबह ऑब्जर्व कि उसने 1, 2, 4, 5 पैकेट जब तक खत्म नहीं हो तब तक खाया, एंड जब वो पैकेट बिन में डाल रही थी, देन टाइम शी सॉ नो वन कैन ईट जस्ट वन. इज दैट पंच लाइन. सेम विद द चॉकलेट. एक पीस खा लेती हूँ, फिर नहीं खाऊंगी, बट वो टेम्पटेशन जितनी बड़ी भी चॉकलेट होगी वो खत्म होके ही आप रखोगे. सो व्हाट इज दैट? तो रिसर्च में फाइंड आउट हुआ that the food companies are investing millions of their money to make the food addicted. कि हमारे टंग पे टच हुआ and we get it to that addiction. For that they add 3 ingredients in very high quantity. Generally it's the salt, the sugar and the fat. Fat is the oil. जैसे आप चिप्स में देख लो, हर प्रोडक्ट में देख लो, तो उसमें सॉल्ट, शुगर और फैट होगा ही. जैसे अभी आप 20-25 स्लाइस कुकुम्बर खाएंगे ना, you feel like हाँ हो गया, बट पोटैटो चिप्स तो 25 की क्या 50 भी खा लोगे, आपको पता ही नहीं चलेगा. राइट? सो एंड देन वी फॉल इनटू अ विशियस साइकिल ऑफ डिपेंडेंसी to go there, buy that flavor and that chips, and that craving happens on a repeated basis. But we always think why nobody is stopping this. Government को action लेना चाहिए, right? So either we can wait for the system to change, or we can take the responsibility of our health and put this into action. Am I clear? So who all are ready to take the full responsibility of their own health? Rather than government को ban कर देना चाहिए chips, government को ban कर देना chocolate. So dead foods government को ban कर देना चाहिए. Or there can be second category like me and many in the groups who could take the charge in the responsibility of their own health. So there are 3 categories. We have time, na, Vinita? Of course. Yeah. We can take another 5-10 minutes. So there are 3 steps कि हम इनकी वो gimmicks में fall नहीं करें. तो very dead list, very nasty ingredients like this biscuit, Karachi bakery biscuit I got, very nasty ingredients. पहला मैदा, दूसरा sugar, तीसरा edible fat, that is the palm oil. Right? पहले 3 ingredient पढ़ने से पता चल गया अंदर picture क्या है. Very nasty ingredient, highly processed, avoid consuming it at all. So what we can do? We can choose from yellow list and green list. What is that yellow list? Yellow list contains clean ingredients like kaju, right? Apna khajur pak, chikki. These are minimally processed and can be eaten sometimes. Now, when we are traveling, we can carry something like this. These are clean ingredients. And then there is green list. There is कोई ingredient नहीं है. आज इसमें मेरा कोई ingredient लिखा हुआ नहीं है. So they are ingredients themselves. They may come in packet or bottle, like the rice comes in a packet, but it is minimally processed, right? So you can consume this. This packet of rice should not be polished rice. It should be unpolished rice, right? So this you can consume abundantly. ठीक है? So
we choose from the green and the yellow list. So let's answer. Mary Light Biscuit, which list is it? Write in the chat box. Red. Correct answer. Roasted cashews, yellow. Okay. Peanut butter, which is made from pure nut. Peanut butter, which is made from the pure butter. So that is in the yellow list. And there is a peanut butter by Delightful Nut. उसमें क्या रहता है? उसमें ingredients corn flour, sugar, peanut butter, edible vegetable oil. So this category comes in the red list. So same category products like I buy hazelnut for my daughter, this brand. This is a yellow list, but the other company brand is a red list. So we start reading the ingredients. Okay? So rice comes in a good and the bhujia comes in a great. So test में सब बच्चे pass. I'm so happy that you all are so well participating. So now I am not requesting you to remove this. What we can do, we replace it. So it becomes viable in the long run. So what she is saying, कि आप जो चिप्स नमकीन खाते हो उसकी जगह आप रोस्टेड नट्स खाओ, ग्राम खाओ, या फिर घर में चूड़ा सेक लो, होममेड चिप्स बना लो, बिस्किट कुकीज जगह की जगह फ्रेश फ्रूट्स खाओ. Best is have do this. Otherwise you can make homemade cookies, apple dipped in peanut. वैसे ही चॉकलेट, अब मार्केट का प्रोसेस्ड पैकेज नहीं खा के चॉकलेट स्मूदी बाउल बनाए. And everything is available on the Sattvic Movement website. Lot of recipes, very perfectionly crafted, and you can see the alternates there. So this is the step 2. First, choose from the green and yellow list, and second, replace and not remove. इसमें और भी ऑप्शंस है कि अपने बॉटल्ड सोडा पीने की जगह लेमन वाटर, नारियल पानी पिए. Otherwise, we can have fresh juices. Packaged ketchup की जगह we make homemade sauces and chutney. So these are the options. Instead of ice cream from outside, we make smoothie bowls from banana at home, right? So options are there. We do practice. I practice it for last 2.5 years. I know my sister and all, they are practicing it for like 7 to 8 years and it's viable. हम कहीं भी travel करते भी हम भूखा भी नहीं रहते हैं and we get the food of our choice because we have understood this logic well. So we are able to find out from the list and the ingredients. And point number 3 is tweak into your kitchen environment. अपने किचन में जाइए, स्टोर में देखिए what all are the products, उनकी ingredients क्या है. Don't just eliminate your favorite processed food. What you do is make packaged food invisible. अपने घर में आप ऐसा वाला भुजिया मत लाओ, उसका कोई दूसरा रिप्लेसमेंट रखो, तो आपका हाथ और मन और इस पे चलेगा ही नहीं, राइट? घर में रहता है, इसके लिए खाया जाता है. जब आप बहुत भूखे हो, तब जब ये रखा रहेगा फ्रूट बास्केट आपकी टेबल पे, तो सबसे पहले आप यही उठा के खाओगे, राइट? So this was the 2 things. The 2 most sneaky culprits in our kitchen. One is, हम सोचते हैं यार नाश्ते में तो पराठा ही खाया था, चाय कॉफी और ये सब तो घर का ही बना दाल चावल खाता हूँ मैं. But is this wholesome? By wholesome she means that wholesome is the purest, unaltered and unfragmented form. The food का जैसे बनाना pumpkin, उसमें उसके सारे न्यूट्रिशन है, उसके साथ डाइजेस्ट करने की उसके सारे पावर्स हैं, तो नेचर ने उनको प्योर फॉर्म में दिया है. तो विदाउट रिफाइनिंग और ऑल्टर अगर हम उसको खाते हैं तो इट बिकम्स द बेस्ट फूड. लाइक अ कॉर्न व्हेन वी ईट इन द फर्स्ट फॉर्म इज द मोस्ट हेल्दीएस्ट. बट इसको कैसे करते हैं? सुखाते हैं, भुट्टा करते हैं, सेकते हैं, आटा बनाते हैं, दैट इज ऑल्सो ओके. फिर थर्ड में हम सिर्फ शुगर सिरप बना लेते हैं, कॉर्न का सिरप, वहां पे सिर्फ उसकी मिठास निकाल लेते हैं. सो दिस इज हाईली प्रोसेस्ड कॉर्न स्टार्च सिरप. और सिर्फ या फिर कॉर्न स्टार्च होता है जिससे हम लोग मंचूरियन और ये बनाने में, ग्रेवी बनाने में, थिकनर में यूज करते हैं. तो दिस इज ओनली द स्टार्च पार्ट ऑफ द कॉर्न. सो सारे उसके जो न्यूट्रिशन बेनिफिट्स सब कुछ था वो रिफाइन हो गया एंड ऑल्टर हो गया. तो हम बोलेंगे ये आया तो नेचर से ही है, बट इतना रिफाइन हो गया ये फैक्ट्री में कि नाउ उसके जो वाइटल सब्सटेंसेस है वो सब सब्ट्रैक्ट हो गए फ्रॉम द. सो द फर्स्ट 2 culprits, फर्स्ट इज दिस द रिफाइंड फूड्स. आप लोग कौन सा रिफाइंड फूड्स खाते हैं लिखेंगे और फिर घर पे जाके थोड़ा होमवर्क करेंगे कि हमारे ब्रेकफास्ट सीरियल में कितना है, कोल्ड ड्रिंक में कितना है, चोको पाउडर में कितना है, क्या चीज है ये एडिक्टिव चीज है जो कोकीन से भी ज्यादा एडिक्टिव है. रिसर्च हैज शोन कि अगर रैट्स को कोकीन का इंजेक्शन देंगे और शुगर वाटर का इंजेक्शन देंगे, आफ्टर फ्यू डेज 94% of the rats started to have sugar water, not the cocaine. So if you Google it out, you will find out that sugar is more addictive. White sugar, refined sugar is more addictive than the cocaine. ठीक है? And second, okay, तो minimally refined sugar, highly processed sugars तो आप हटा दीजिए. And best would be unrefined sugars जो dates, fig, resin, banana, pineapple, berries से आती हैं.
कभी कभार लेना है तो आप मिनिमली रिफाइंड शुगर्स जैगरी का उसका ब्लॉक सिरप पाउडर ये ले सकते हैं, ठीक है। और सात्विक की वेबसाइट पे दे हैव आल्सो मेंशन्ड अबाउट द क्लीनेस्ट स्नैक्स ब्रांड। हमको लगता है हम कहाँ पे ढूंढे, इतने इंग्रेडिएंट्स कहाँ पड़े, विजिट देयर वेबसाइट, दे हैव आल्सो मेंशन्ड अबाउट द क्लीनेस्ट snacks brand which you can choose from there. And if you are taking up this challenge, I would invite you ki you quit refined sugar for 3 weeks and you will notice what the puffiness in the face has gone, your skin will look better, you will experience sustained energy throughout the day, and the cravings for unhealthy food will go down on its own. This is my experience. I have been a sugar lover always. मैं इतना डब्बा भर के गुजिया मेरे लिए बनती थी, मैं खाती थी, 9-10 गुलाब जामुन तो मैं ऐसे ही टेस्ट करने में खाती थी. बट व्हेन द शुगर क्रेविंग्स, आई हैव स्टॉप्ड ईटिंग दिस रिफाइंड शुगर. आई डू ईट शुगर, डेट से बनाती हूँ, मीठा करती हूँ, बट इट्स नॉट दिस. whenever I am feeling having a sweet tooth, I'll take a chiku, something like this. So it's negotiated, but not acceptable में आप जब जाओगे तो white sugar cancel करके. And the second refined food in our diet is what? 2-3-4 minutes I can take, Vinita. So the Yes. second refined food, if we can guess, I came from a family of white and smooth. Early in my youth, my outer skin was removed. My ancestor is humble wheat grain. But sadly from me, no nutrition you can gain. ठीक है, ब्रांड निकल रहा है. And take a guess, who do you think I am? And once I enter the body, it's hard for me to leave, no matter how much you try. So take a guess. You all can mention your answer. Yes, Maida. Okay. We have got a smart audience, Vinita. Oh my Yes, we God, have. they already knew. So we generally don't make chapatis from maida, right? But then also think of the foods that you consume of it. Breads, Kulche, bread, cakes, pastries, bhature, हाँ, pizza. puff, समोसा, नान, ठीक है. तो हम बोलते हैं कचौड़ी. हम घर पे नहीं बनाते, बट बाहर से जो सब लाते हैं सब में. और when I went gluten free parties में जाती हूँ, and I really am not able to find a item without it, ठीक है. तो but now I know this science, so I'm able to find food for myself, living food for myself. और भर पेट खाते हैं हम. So let us understand how it is made. The bran is removed, the germ is removed, and only it is just mixed. इतना white, इतना सुंदर. इसका कभी आप एक प्रोसेस है करने के लिए, एक पैन लीजिए, उसमें 2 चम्मच मैदा चलाइए, थोड़ा सा पानी डालिए, एंड सी हाउ व्हाट अ पेस्ट इट बिकम्स. एंड सेम उतनी क्वांटिटी का आटा लीजिए, चलाइए, उसमें पानी डालिए और देखिए कैसा स्टिकी वो बनता है. ये जो मैदा है, दिस इज कॉल्ड एज ग्लू. पहले के टाइम में चिपकाने के, पोस्टर चिपकाने के काम आता था, राइट. एंड वी हैव वेलकम्ड इट लाइक अ डिश डे सिंस मॉर्निंग, कुकीज और बिस्किट से स्टार्ट करके, ठीक है. और मेहमान आते हैं उनको भी ऑफर करते हैं, किसी वी वांट टू सर्व यू विद समथिंग गुड, ठीक है. सो इंटेंशन इज नॉट दैट हमको वो नॉलेज नहीं है. सो it was observed in an American research for 74,000 women for 12 years that those who consumed more of the refined ended up with more belly fat and weight gain. So there are alternatives. Worst are highly refined flours. Much better would be wheat flour, besan, millet flour. तो आप जब ये नॉलेज आपको मिल जाएगी तो पता चलेगा मिलेट्स क्या है. लास्ट ईयर वाज मिलेट ईयर, 2023 इंटरनेशनल मिलेट ईयर. इसमें 5 तो स्मॉल मिलेट्स होते हैं विच आर पॉजिटिव मिलेट्स, बैनियार्ड, कोडो, फिंगर, फॉक्सटेल, लिटिल एंड ब्राउन टॉप. सो दीज आर द 5 स्मॉल मिलेट्स. एंड देन हमारा ज्वार, बाजरा, ठीक है. सो व्हीट ग्रीन रेवोल्यूशन आने से सिर्फ व्हीट और राइस को प्रमोशन मिला, एंड ये सब जो पुराने मोटे अनाज थे वो उसको साइड कर दिया गया. अदरवाइज पहले लग्जरीज होती थी, जब मेहमान आते थे उनके लिए रोटी चपाती बनाई जाती थी, बासमती चावल बनाया जाता था, बट हमने इनको अपने किचन में घर दे दिया है, and we have removed these things, the ancient grains, right? So they are, millets are excellent because वो कम पानी में उगते हैं, उनका glycemic index low है. What do we mean by glycemic index? जब हम उसको खाएंगे तो हमारा जो sugar spike होता है वो immediate नहीं होता है, and it is full of nutrients and fiber, मतलब protein, B12, everything full of nutrients. So I would request कि हम हमारी diet में millets को incorporate करें. And believe me, अब जैसे मेरा diet इस लाइफस्टाइल को फॉलो करने के बाद हो गया है, तो पीपल वुड से शी इज डाइटिंग. हम लोग इतना जंक फूड खाने लग गए हैं कि हमारा रियल ईटिंग हो गया है. रियल फूड को हम बोलने लगे, इट इज कंसिडर्ड एज डाइटिंग, कि वो तो डाइटिंग कर रही है, ठीक है. इफ शी इज नॉट टेकिंग दिस समोसा, शी इज डाइटिंग. सो दिस हैज बिकम द माइंडसेट एज ऑफ नाउ. So the intention of this session today was you to gain the knowledge, you to empower yourself so that you can make the informed decision. This was today's session all about.
people are fed by the food industry. The food industry pays no attention to the health. We can see from the packets, they are interested just in the profits. And then we are treated by the health industry. Food industry हमने खाया, उनको हमारी हेल्थ से नहीं पड़ी है, और हम हेल्थ इंडस्ट्री मतलब डॉक्टर के पास जाते हैं, दे पे नो अटेंशन टू द फूड. दे से बस पहले सुबह ये एंटासिड खाना, फिर ये एंटीबायोटिक खाना, और 5 दिन में तो तुम ठीक. दे आर नॉट गिविंग एनी सजेशन कि आप ये फूड अपनी लाइफस्टाइल में ले आओ तो क्यों होगी बीमारी. So by eating and living wholesome food, we are breaking from this cycle and we can take the charge of our health in our own hands. Thank you for a patient listening. I hope I was able to deliver whatever was given in the chapter 1 to 5 of the Sattvic Revolution. अब इसके आगे next episode में. Thank you, Vinita. Thank you, Anchal. It was such a lovely and insightful, knowledgeable. मतलब अभी तो मैं speechless हो रही हूँ. But I would like to share this with everyone. As Anchal rightly said, हमारा हेल्थ चैनल का मोटो भी वही है, सेल्फ कमिटमेंट टू योर ओन हेल्थ. तो जब आप अपनी हेल्थ की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेते हैं और खुद कमिटेड होते हैं कि मुझे अपनी हेल्थ के लिए और हैप्पीनेस के लिए क्या करना है, देन यू विल नॉट बिलीव, पता नहीं कितने रास्ते, कितने लोग आ जाएंगे आपके सामने आपको हेल्प करने के लिए. सिर्फ आपको अपने लिए खड़ा होना है, आपको अपने लिए कमिटेड होना है. आपको इतनी यूनिवर्स आपको इतनी हेल्प इतने अलग अलग तरीके से देगा ना, आप खुद विश्वास नहीं कर पाएंगे. लेकिन वो खुद से कमिटमेंट आना बहुत जरूरी है. हम यहाँ पर सिर्फ हेल्प कर रहे हैं कि हम कुछ जो मेरी और अंचल की कुछ लर्निंग है हमारी अपनी जर्नी से, वो हम आपके साथ में शेयर कर सकें, अपनी लर्निंग, अपने एक्सपीरियंसेस, और उसको हम कुछ स्ट्रक्चर्ड तरीके से अब तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं. सो एज वी सेड इन द बिगनिंग ऑफ द सेशन ऑल्सो, we'll have 3 knowledge sessions. आज का हमारा knowledge session बहुत अच्छा रहा. We look forward for the other 2. And meanwhile, you can also participate with us on the habit building challenge, which will go on for 3 weeks. It will start from Monday. उसके rules regulations मैं WhatsApp group में share कर दूंगी. Time for a group picture. हम इतने मजेदार सेशन के बाद हमारे हंसते चेहरों को एक पिक्चर में कैप्चर करना चाहेंगे. So I would request everyone to please switch on their video. हम quickly एक पिक्चर लेते हैं and then we'll move to the questions. Anchal and Vinita ji, I really love you. Thank you so much. Anchal has been such a motivating factor in my life. I am so blessed to have met her in Lonavala, and her husband Okay. is the best singer you can find under the world. Okay. So I am very, very thankful and grateful for both of you. So thank you. Thank you. Anchal, I'm coming to Surat. Huh? You better treat me some Gujarati khana. So everyone, until we have a few audience questions, I'll speak quickly take up that. Someone asked us which biscuit is good for health, and कोई hazelnut spread के बारे में भी जानना चाह रहा है. So do you have answer for this? So we take up first question ki which biscuits are good. Yeah. So start reading out the ingredients. Sugar है क्या, मैदा है क्या, palm oil है क्या, और वो उसके बिना क्या मिलते हैं. When you are ready to pay ना, either pay to the farmer or pay to the pharma. वो बिस्किट्स अब ऑल्टरनेट्स आने लगे हैं मार्केट में. सात्विक की वेबसाइट पे भी है, हर रिसेंट स्टोर्स में मिलने लगे. बहुत सारे हेल्दी स्टोर्स होते हैं जहाँ पे आप इंग्रेडिएंट नहीं पढ़ोगे ना, फंस जाओगे. बेटर रीड इट ऑन योर ओन. दे आर सेइंग दैट इट्स अ ऑर्गेनिक स्टोर एंड इट्स अ हेल्थ स्टोर, बट उनके जो बिस्किट होंगे वो सेम कैटेगरी में ही होंगे. दे आर चार्जिंग यू प्रीमियम ऑल्सो एंड देन मेकिंग यू फूल ऑल्सो. सो लर्न रीडिंग द इंग्रेडिएंट्स. जब इंग्रेडिएंट्स होंगे सिर्फ बकवीट है, सनफ्लावर सीड है, कोकोनट पाउडर है, रेजिन, जैगरी, आमंड्स, तो ऐसे आमंड बकवीट बिस्किट आते हैं. Buy it for my kids. There are farmer market in Surat जहाँ पे वो ladies खुद बना के लाती है. Then I ask what are the ingredients? Okay, this is meeting my list. Fine, go ahead, I'll buy. Otherwise, I'll not. Right? So what is the difference between the junk food and the fast food? With आप some देखो उसमें examples. शुगर है क्या, मैदा है क्या, सारे फास्ट फूड में होता ही है. आपको टेस्ट ही नहीं लगेगा. आटे वाला जो ब्रेड बोलते हैं ना, वो भी मैदा ब्रेड में ब्राउन कलर होता है. ठीक है, तो आप बहुत अच्छा कर रहे हो, ऐसा कुछ चॉइस नहीं ले रहे हो. तो बेकरी आइटम्स भी बहुत डिटोरेट करती हैं. तो मेक अ कॉन्शियस चॉइस. आई थिंक आई हैव ट्राई टू कवर द कंटेंट कि आप कैसे करोगे. तो वो जंक फूड, फास्ट फूड सेम कैटेगरी है. वो मैकडोनल्ड्स का बर्गर 2-2 साल तक उसका कटलेट बराबर रहता है मैन्युफैक्चरिंग. आपका कटलेट आज बनाओ, रात में बनाओ, मैं तो सुबह नहीं खाऊं. कटलेट घर में बनाओ, आलू टिक्की, अपनी आलू टिक्की तो है कटलेट. आज बनाते कल वो लगता है उतना ही क्रिस्प, उतना ही टेस्टी. क्यों नहीं लगता भाई? कुछ तो गड़बड़ है ना दया, कुछ गड़बड़ है.
So there are preservatives, something is added which is addicting our taste and tongue, but वो घर पे वैसा तो बनता ही नहीं है कि नहीं? बिल्कुल बिल्कुल। जंक फूड फास्ट फूड एक ही कैटेगरी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन नेम्स चाहिए सारे डिफरेंट मिलेट्स के। हाँ ठीक है, मैं ग्रुप में पोस्ट करती हूँ। सो मुझे भी, मेरे को ज्वार भी ऐसे ही बाजरा नाम से पता है। समई ये सब तो है ही, सामा ज्वार बाजरा, बाकी उसको कोडो को और फॉक्सटेल मिलेट को क्या बोलते हैं, मुझे भी, मैं पैकेट तो इंग्लिश में हाँ, एक बार हम भी थोड़ा सा हाँ सर्च कर लेंगे। हाँ हम भी जी सर्च करके बिल्कुल। ऐड कर देंगे। हाँ जी। इज द गुड फूड ओनली द वे टू कीप आवर बॉडी क्लीन फ्रॉम विद इन, जो यस, आपने सेशन के शुरुआत में बोला। आप बताओ, मैं वाज अभी तक साफ नहीं कर पाई हूँ, बाहर से कितना चमका रही हूँ। जब तक मैं इनलेट ही अच्छा नहीं डालूंगी तो मेरे कैसे रहेगा। बट जिन्होंने ये क्वेश्चन पूछा है, मैं उनसे बोलना चाहूंगी, अगर आपका मतलब ये था कि सिर्फ हेल्दी और क्लीन खाना खाने से मेरा अंदर सब क्लीन हो जाता है, अगर आप उस तरीके से जानना चाह रहे हो, तो फूड इज नॉट इज वन बट वेरी मेन एस्पेक्ट। उसके अलावा बहुत सारी चीजें आपको करनी पड़ेंगी फॉर योर इमोशनल, स्पिरिचुअल एंड मेंटल वेलबींग, जो हम धीरे धीरे कवर कर रहे हैं। वी हैव इनकॉर्पोरेटेड दैट इन द rules that we are laying out for the challenge. So that all is very essential. But yes, food plays a very big part, I would like to say. Another question, please tell me how to clean myself from within ASAP. जल्दी कैसे कर सकती हूँ मैं? क्या जल्दी अंदर करना से है? क्लीनिंग अपनी जल्दी कैसे कर सकती हूँ? as soon as possible. मे बी मैं मैं बहुत करती हूँ, ये anxious बुक का हूँ। पार्ट नहीं है जो मैं हाँ करती जी हूँ। सुबह ग्रीन जूस लिया, अभी जी आज तो एकादशी फास्ट है, आज तो वाटर फास्ट, ठीक है, तो वो ओके आगे के सेशन में आएगा, मेरे ख्याल से अभी नहीं लेते, इट्स टू अर्ली। जी जी हाँ, वो अब ठीक। पर छोटे से अगर मुझे बच्चे को, जल्दी से कुछ अचीव करना है तो उसके कुछ टिप्स हैं क्या? मेरे ख्याल से शॉर्टकट में नहीं जाएंगे, आप स्लोली जाओगे ना, क्योंकि क्या होगा ना, शॉर्टकट में तुरंत आप करने जाओगे, आपसे ये निभेगा नहीं। मैंने स्लोली एंड ग्रेजुअली मेरा कंसिस्टेंसी मोनो इज फ्रूट वेरी किया। इंपॉर्टेंट। हाँ मेरा जी नाश्ता जो सुबह का करती थी वो मोनो फ्रूट करने में मेरे को 6 महीने लगे। उसके बाद आई जी मूव टू अ रॉ लंच, तो जी 2.5 years इट हैज टेकन मी टू डू अ वाटर फास्ट एकादशी। एवरी वीक आई डू अ वाटर फास्टिंग। तो ये हैबिट बिल्ड होने में 2.5 years लगे। ओवरनाइट कोई करेगा तो 15 दिन बाद तो शादी में जाएगा, वो बोलेगा नहीं यार मेरे पे सजा हो रही है। नहीं, लिव अ लाइफ हैप्पीली, आई वांट टू डू दिस। तो करेक्ट कोई शॉर्टकट मत ढूंढिए, मुझे ऐसा लगता है। आई एम दिस टाइप ऑफ पर्सन, मे बी समबडी इज वेरी अग्रेसिव, जिनका मंगल बहुत स्ट्रांग होता है, वो बहुत अच्छा स्ट्रांग डिसीजन लेते हैं, तो वो मेरे ख्याल से रातों रात भी करें तो होता होगा। मेरे लिए दिस वर्क्स स्लोली एंड ग्रेजुअली, आई विल स्टेप। भाई पहले मैंने 8 बजे तक नहीं खाती थी, फिर मैंने अपना इंटरमिटेंट थोड़ा सा और बढ़ाया है। पहले मैं 10 बजे खाती थी, तो वो मैंने धीरे धीरे कम किया है। तो दिस जी एरिया हैव इंक्रीज, तो वो स्लोली मेरे लिए वर्क करता है। फॉर समबडी वी कैन टॉक इन पर्सन, जिनके लिए फास्ट, जिनको रिजल्ट चाहिए तो वो कर सकते हैं क्या, नहीं तो फिर यू विल बी आउट, ऐसा मुझे लगता है। अगर आप एकदम से रातों रात हैबिट चेंज करेंगे, इट्स नॉट लाइक मैसिव चेंजेस, इट्स स्मॉल steps making gradually and consistently. I've heard this from many masters, and और मैं भी ये पर्सनली बहुत बिलीव करती हूँ कि मैं आज 0 पे हो सकती हूँ, मेरा टारगेट 10 हो सकता है, मैं जंप करके 10 तक नहीं पहुंचूंगी, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं कि मैं चलना ही शुरू ना करूं, क्योंकि मैं 10 तक पहुंच नहीं सकती। सो दैट आवर टारगेट शुड बी, मेरी ग्रोथ एज प्रीवियस डे है कि नहीं है, मुझे अपनी ग्रोथ को ही मेजर करना है। एम आई बेटर, एम आई फिटर फ्रॉम वॉट आई वॉज yesterday? बस उसको समझ के हम रोज या वीकली या 15 दिन 20 दिन भी मैंने एक ही हैबिट पकड़ी, सपोज फॉर एन इंस्टेंस आई जस्ट कट डाउन ऑन द प्रोसेस्ड फूड, जस्ट वन सिंपल थिंग, बाहर का पैकेट फूड में नहीं खाऊंगी। if I'm consistent only with this one thing for a month, I'll see miraculous changes in me. That is my experience. Someone has asked for a good tiffin service nearby. I said, I think Subhashini aunty आपको maybe आप ये group में question पूछेंगे, and then within your locality ऐसे क्या options हैं वो जरूर निकल के आएंगे, because there are lot many people who are now following sattvic diet, vegan diet, और जितना हम उन लोगों के साथ में कांटेक्ट में आते हैं, हमारी जो लॉजिस्टिक क्वेश्चंस या लॉजिस्टिक चीजें जो इंफॉर्मेशन लेवल पे हमारी वो एनहांस होती है, हमें पता चलता है। हम उस दिशा गए ही नहीं, इसलिए हमें पता नहीं है। हम एक बार जाना शुरू करेंगे, एक बार तय करेंगे कि हमें उस रास्ते पे चलना है, तो वील गेट मेनी ऑप्शंस। And I think हाउ मच विनीता, इनटेक ऑफ जैसे घी like पर when डे we इज travel गुड ना, फॉर हेल्थ? आई एम और सॉरी। वो गुड टिफिन सर्विस जो ढूंढ रहे हैं ना, हाँ तो जी व्हाट वी डू व्हाइल ट्रैवलिंग, थैली से जी सब फल ले लिया, चाकू साथ में है, yes, कोई भी रेस्टोरेंट में गए सैलेड मंगवा लिया, बॉइल्ड जी वेजिटेबल्स एवरी होटल कीप्स, तो 2 जी डिशेस ऑफ बॉइल्ड वेजिटेबल्स, मिक्स वेज बॉइल्ड ले आओ, कुछ आप डालना मत, हम देख लेंगे। फिर ये वाला great, पालक की सब्जी इस तरह बना के लाओ,
तो वो आता है और भर पेट एक एक प्लेट तो मैं मेरे लिए मंगाती हूँ, एंड देन अ लिटिल ऑफ ग्रेन। तो वो चॉइस में मिलता है। हम जब समझ Right. जाएंगे ना पूरा लॉजिक, तो हम समझ पाएंगे। इनफैक्ट हम कोरोना में क्या कर रहे थे, जब लॉकडाउन शुरू हुआ था तो हम जब खुद मील्स प्रिपेयर कर रहे थे, वी वर नॉट गोइंग फॉर मेनी ऑप्शंस। हम वन पॉट मील हैड बिकम अ फैशनेबल थिंग एट दैट टाइम। वन पॉट मील हम लोग इजी गोइंग में कुछ होम कुक फूड खाते हैं, दैट इज more than enough. I mean, we may try that rather than looking if we are not able to get right options nearby or in our locality. Okay, best time for eating fruits. मॉर्निंग भर पेट खाइए। कितना खाना है इसमें डॉक्टर बीआरसी बोलते हैं आपके वेट का 10 टाइम्स। मतलब मेरा अगर Okay. 50 है तो 500 ग्राम। तो मैं तो जब पपीता का मोनो फ्रूट आई डू, तो 1 फुल पपीता आई टेक। 1 किलो होगा, 1.5 किलो होगा, आधा किलो छिलका जाएगा, बट आई ईट दैट मच ओनली एंड देन आई एम डन। बट ये हैबिट स्लोली आई है। हम फ्रूट तो खा रहे हैं, कितना खा रहे हैं, ये खा रहे हैं, फिर 4 पराठा खा रहे हैं, दैट इज रॉन्ग। सो दैट विल लर्न आगे वेट की घी कितना खाना है। घर पे ब्रेड बनाना वंस इन अ वाइल इज ओके। somebody had asked कि घर पे ब्रेड बनाना है with whole wheat bread. Yes. Sometimes I also make for myself. तो वो उसमें खापली व्हीट लेते हैं। तो खापली व्हीट इज एक्चुअल देसी व्हीट वी कैन ईट। उसमें ग्लूटेन Okay. कम है, Nice. ठीक है। तो How वो much धीरे धीरे intake of ghee? आप इस लाइंस में आओगे तो अपने आप सीखोगे। घी के लिए हम नेक्स्ट सेशन में जाएंगे ना, तो घी का डिस्कशन वहां पे है, तो आज आंसर Sure. नहीं करूंगी। श्योर। दीपक जी, आप जानना चाह रहे हैं जेबी नगर अंधेरी में जैन फूड, विल डिस्कस ऑन द ग्रुप। हम ग्रुप, क्योंकि वो ज्यादा अच्छे से बता पाएंगे वहां के लोग। अंचल जी सूरत की हैं तो वो नहीं बता पाएंगी एग्जैक्टली। हितेश जी ने हमारी हेल्प कर दी है, चैट बॉक्स में सारे मिलेट्स का हिंदी नाम उन्होंने ढूंढ के दिया है। थैंक यू हितेश जी। थैंक यू। हाउ टू रिड्यूस द शुगर क्रेविंग्स? आप लीजिए, आप डेट्स और पाम जैगरी ये सब का डेट का बनाइए आप चिक्की। मैं तो कोकोनट अपना जो कोपरा रहता है वो सीड्स है, और इसमें जैगरी मिक्स करके अपने लड्डू बनाती हूँ, सीड्स एंड नट्स का लड्डू। एंड कोकोनट ऐड करने से तो इतना टेस्टी बन जाता है। एंड आई मेड इट फ्रेश। मैंने पीस के थोड़ा थोड़ा सेक के हफ्ते भर का रख लिया है। मुझे खाने के बाद चाहिए ही, तो मैं इतना सा अपने लिए निकालूंगी, बांधूंगी एंड मस्त मैं खाऊंगी। आई कैन लीव मीठा, बट व्हाट मीठा आई कैन चूज, आई हैव लर्न फ्रॉम दिस। एंड इट्स ओके इफ वी स्पोक कि हम बिल्कुल नहीं छोड़ सकते, हम धीरे धीरे उसको कम भी करते हैं तो भी हमने बहुत बड़ी चीज अचीव करी है हमारे लिए। और मीनल जी ने अपने सॉरी, आई वुड जस्ट लाइक टू इंट्रोड्यूस मीनल जसवाल। शी इज अंचल सिस्टर एंड जस्ट अ कपल ऑफ मंथ्स बैक उन्होंने इम्यूनिटी पे हमारे साथ में सेशन लिया था। उन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही थी जो मुझे अभी याद आई, कि हम कई बार ना अपने आप को, या हम ये सोचते हैं ठीक है हम 5 दिन मीठा नहीं खाएंगे और एक दिन हम चीट डे करेंगे। तो मीनल जी, आपने एक बहुत अच्छी बात कही थी कि हम चीटिंग उसके साथ करते हैं जिससे हमें प्यार नहीं होता। तो अगर हम खुद से, अपनी लाइफ से और अपनी बॉडी से प्यार करते हैं, तो फिर इस रिलेशन में चीटिंग का कोई स्कोप ही नहीं है। सो वी मे गो स्लो, वी मे डिसाइड। आई वुड रादर से कि अगर मैं आज डिसाइड करती हूँ दैट संडे वुड बी वन डे जब मैं मीठा खाऊंगी, अपने आप को अलाउ करूंगी, और अब मैंने अगर डिसाइड करके सिर्फ उसी दिन खाया, so then that is not a cheating. Okay, next question. What should we consume the first thing in the morning? Is it wheatgrass juice or coconut water? What is the good option? Yeah, so the book says कि the bonus to our life would be ashgard as a alkaline juices लेंगे तो। Okay. तो wheat grass juice ये सारे भी alkaline juices हैं, and keep on changing, not just have the one. But सुबह जैन तो दे से कि ashgard juice आप लीजिए। The book says कि जो उनकी डायरेक्शन में कि ashgard juice is the most alkaline. अदरवाइज कभी हमको नहीं मिलता तो हम तो घर में दूधी, कुकुम्बर, इसका भी जूस बनाते हैं। और पत्ते मैं तो ग्रीन्स बहुत डालती हूँ, बिकॉज हमारी लाइफ में तो ग्रीन्स है ही नहीं, उसको हम सब पका देते हैं। फास्ट हेमोग्लोबिन बढ़ाना हो जो मुझे करना है, तो मैं व्हीट ग्रास का डायरेक्ट, तो उसमें वो क्वांटिटी जाती है ग्रीन्स की। Kavita ji is asking, I would like to share one thing. My kids like pani puri, dosa, idli, so I make at home. Also, in case of pav bhaji, I replace the pav with chapati. Very nice, Kavita ji. As I said, once we are So you make committed, the हम puri इतने at home? creative हो जाते हैं. हाँ, but I want to know, make the puris at home or just the pani? No, she's mentioning. Kavita ji, you can unmute and talk by yourself. पानी So मैम and puris जो वो मार्केट में फ्राइड पाम ऑयल में अगेन एंड अगेन रीयूज ऑयल में मैम वो पूरियां तली गई है ना। yes, So you but don't that make- one suji option is there, no, for puri. पर तल के तो वैसे ही आया है मैम। तो आप हाँ। चूज करो। आई एम नॉट सेइंग कि ओवरनाइट चेंज होगा और बच्चों के साथ तुरंत ही चेंज होगा, बट ओवरनाइट आप मतलब स्लोली एंड ग्रेजुअली यू कैन डिस्कस कि बाहर के Yes. पानी से तो चलो ये पानी अच्छा है, बट हमने हाँ। क्या किया ना, बाहर के रेस्टोरेंट को आप घर पे ही ले आए हैं, बाहर जैसा ही पिज्जा बनाने लग गए, बाहर जैसा ही बर्गर बनाने लग गए।
तो हम बाहर का खाना खराब है उसको ही हम घर पे कॉपी रेप्लिका करने लगे। तो कॉन्शियसली मैम हम पैकेज प्रोसेस जितना जितना कम करेंगे ना, ये हमारे एडिक्शन जो जीभ को लग गए हैं वो स्लो डाउन होंगे। आप लिविंग Yes, फूड खाने लगोगे अपने आप वो स्लो डाउन होंगे एडिक्शन से। yes. आप But पहले I अपने वर्क try, करो। yes, I try to like make the kids happy by making at home because puri it's a different thing. I don't know how to make it at home. No, even replacing pani is a very good thing. Yeah, pani I take pudina and this coriander leaf water. Sure. There's a question. Kindly share guidance on addressing the issues of pesticides and adulterated fruits and vegetables. जो हमारे गुरु हैं, Subha also mentioned the Guruji in the book. So he says rather than eating, looking for organic food and cooking it, अनऑर्गेनिक रॉ फूड खाना ज्यादा बेटर है। अनऑर्गेनिक रॉ फूड खाना ज्यादा बेटर है। आप उसको थोड़ा देर नमक के पानी और उसमें रखें, क्योंकि कुकिंग से कितना भी ऑर्गेनिक लेके आए हो बट उसके बहुत सारे एंजाइम्स तो मर ही जाते हैं। ठीक है, तो आपके शहर में भी अगर फार्मर मार्केट जैसे हमारे यहाँ लगती है बिना पेस्टिसाइड और इसके खाना मिलता हो तो आप लेके आइए। आई हैव स्टार्टेड इन्वेस्टिंग इन माई हेल्थ एंड माई फूड। तो आई तो बाय फॉर माई सेल्फ, बट इफ इट इज नॉट अवेलेबल तो वो टैमरिन के पानी में रखना, थोड़ी देर सोक करके रखना एप्पल्स को, फ्रूट्स को, तो उससे काफी कुछ थोड़ा निकलता है नमक के पानी में, हल्दी के पानी में। सो दीज आर मेनी वेज। अभी यूट्यूब में तो बहुत सारा नॉलेज अवेलेबल है इस पे कैसे निकालें। Yes, Parimal ji, you can unmute and ask. Madam, hello. हाँ जी, Hello. सर बोलिए। Madam, how far the fortified foods are good for health? फोर्टिफाइड फूड आर नॉट गुड सर। are not वो- really good. वो बोलते हैं Okay. सर एक सप्लीमेंट को बना हुआ इतना चावल लिया और इसके साथ थोड़े चावल में वो B12 और वो आयरन का जो मशीन में बना है, लैब्स में बना है, वो वाला B12 और वो वाले चावल को मिला दिया और आपका ये फोर्टिफाइड आ गया। प्लीज आप ये खाओ ना, ये लिविंग फूड है, ये डायरेक्टली एब्जॉर्ब होगा। Okay, फोर्टिफाइड विल नॉट okay. हेल्प, विल नॉट हेल्प। Okay. Thank you. Okay. Great. Subhashini aunty, अगर आप हो लाइन पे तो you can also ask your question directly if I have missed out any. Yes, Suchita ji. Suchita हेलो ji, you मैम, can. हाँ बहुत जी, अच्छा सेशन हुआ, थैंक यू। और Thank you. मुझे ये पूछना था कि आप जो अल्कलाइन वाटर बोल रहे हैं, तो जो हम ककड़ी वगैरह, पुदीना, नींबू, ये रात को जार में, कांच के जार में भर के रखे और वो छान के सुबह पिए, क्या वो भी अल्कलाइन होता है? हाँ मैम, ये है अल्कलाइन जूस, ये ड्यूरिंग द डे लीजिए, पर मॉर्निंग में वो मैं वही बोल रही हूँ, रेस्ट्रिक्ट कर रही हूँ बहुत सारा अपने बुक से। तो उन्होंने एशगार्ड जूस रिकमेंड किया, बट ये वाटर पूरे दिन में आप लीजिए, बहुत अच्छा रहता है। हाँ, बहुत क्योंकि miraculous- एशगार्ड बहुत मुश्किल होता है काटना और सुचिता जी, आप उसको नारियल संभाल पानी ले के, सकती क्योंकि हैं। बहुत बड़े साइज में बड़े वो बड़े। मिलता है, छोटा साइज मिलता ही नहीं है। और फिर वो फ्रीज में भी ज्यादा दिन आता तक नहीं। अच्छा नहीं रहता है, पानी पर छूटता है मैम छोटे उसको। साइज के मिलने लगे हैं अभी, अब बहुत अच्छा, पॉपुलर हो गया है। पहले तो मैंने चेन्नई में देखा, वो लोग तो नजर उतारने के काम में आते हैं। हाँ, वो घर के ऊपर हाँ, टांगते साउथ हैं। में तो, बट महाराष्ट्र हाँ। साइड और गुजरात साइड इतने मिलने लगे मैम, तो मेरा 2-3 दिन में कंज्यूम हो जाता है। और पूरी फैमिली लीजिए ना, पूरी फैमिली लीजिए, और 2-3 दिन इसको रखिए, फिर 2-3 दिन में लौकी कर लीजिए, फिर ग्रीन्स का कीजिए। और उसका कितना अमाउंट लेना चाहिए? ये मैम एक्चुअली 1 पोर्शन टू 10 बोलते हैं। यानी आप- चाय का 1 कप होता है उतना? नहीं, आउंसेस अच्छा चाहिए मैम, ये इसमें पानी कंटेंट ज्यादा है ना, तो अच्छा, आपको पानी का ग्लास में- ग्लास होता है उतना? हाँ, एक हाँ, ग्लास पानी जितना? हाँ। अच्छा, ठीक है, थैंक यू। हेलो मैम, मैम थैंक यू फॉर द वंडरफुल सेशन। मैम मुझे सिर्फ पूछना था, जैसे आपने बताया कि हम जब पार्टीज में जाते हैं तो ग्लूटेन फ्री, ऑयल फ्री फूड मिलना मुश्किल हो जाता है, तो मैं सिर्फ जानना चाहती थी कि आप जब बाहर जाते हो फंक्शंस में तो आप क्या खाते हो, और जैसे क्या आप होटल्स वगैरह में कभी खाते ही नहीं हो या कैसे फॉलो करते हो? मैम बहुत फूडी हूँ मैं, और जाती हूँ होटल में तो सबसे पहले अपना सैलेड ले लेती हूँ। बाहर लोग बोलते हैं कि सफाई से नहीं कटा होता है, बट मैम स्लोली एंड ग्रेजुअली हमारी गट बैक्टीरिया स्ट्रांग हो जाते हैं, तो वो जो सिर्फ ककड़ी खीर अच्छे से नहीं धुला होता है, इसलिए हम वो सब छोड़ देते हैं। और वो जो तेल में, इतना तेल में पका दिख रहा होता है, तेल एकदम सुंदर सा, वो हम उठा के खाते हैं कि वो हमसे पेट में डाइजेस्ट हो जाएगा, और ये ककड़ी टमाटर हमको लूज मोशन कर देगा। बट स्लोली एंड ग्रेजुअली व्हेन यू स्टार्ट ईटिंग रॉ, आपका फ्रूट्स का एपिटाइट पूरा बढ़ जाएगा, आपका सैलेड्स का बढ़ जाएगा, तो आप ऑटोमेटिकली, मेरे को आज तक लूज मोशन नहीं हुआ। पिछले 444 डेज ऑफ मेडिसिन फ्री जर्नी है मेरी दीदी की 8-9 साल की जर्नी है, नो मेडिसिन। ठीक है, सो 9.5. हाँ 9.5, सॉरी, हाँ 2006 सॉरी। सो हमारा गट बैक्टीरिया ऐसा हो गया मैम, हम लोग लारी में भी जाके खाएगा कुछ नहीं होएगा, पेट इतना मजबूत हो गया है। और हमको पता है कि मैम हम इतना सारा, पहले तो सैलेड उठा के खाते हैं 2-3 प्लेट, जैसे ही मैं जाती हूँ और फैमिली बैठती है ना,
मैं कहा ये 2-3 प्लेट सलाद यहाँ रख दो, इधर उधर क्या अलग मंगा लो, ये ग्रीन सैलड हम्म। मेरा है, ठीक है। और भर ओके पेट, हाँ, तो फिर उतना खा लिया, फिर उसमें जो मिक्स वेज सब्जी अपने को खानी है वो खाना है, थोड़ा सा ग्रेन ले लिया। तो हम क्या करते हैं, हम वो हैवी फ्रूट और पैसा वसूलने के चक्कर में ज्यादा रहते हैं। यहाँ पिज्जा हैवी आइटम है, ये वाला मीठा है, नॉर्थ साइड में सुनती हूँ 7-8 तो मीठे के काउंटर होते हैं, तो पहले हम वो वसूलने लग जाते हैं। अरे हेल्थ अपनी है भाई, कोई अपनी दवाई खाने आने वाला है क्या? तुम सोचते पहले हाँ ये करेक्ट सारा लपेट लो, बहुत अच्छा काउंटर लगा है। मैं चेंज हुई हूँ इससे। मैं खुद पहले जाके शादी के हर एक काउंटर का हर आइटम खाती थी मैं, ठीक है। और अब पहले मैं चेक कर लेती हूँ, सूप होता है तो, और उसमें भी देख लेती हूँ बहुत सारा वो फ्लेवर वाला, जैसे सोया सॉस से बना के ही वाला सूप बना होगा, देन आई डोंट टेक, फ्रेश तो वाला लगेगा तो। अदरवाइज सैलेड से हमको दिख रहा है, नहीं तो अपना लेके जाती हूँ डब्बा, खाऊंगी, या ओके। फिर घर से आधा खा के गए वहां पे दिखाने के लिए, हाँ मैंने लिया ना आपका थाली। और अभी मैम आप चीट डेज वगैरह रखते हो, लाइक बाहर का खाना है कभी, या वो खाना ही बंद कर दिया आपने? नहीं मैम, हर जगह अच्छे रेस्टोरेंट्स बने हुए हैं। आप बॉम्बे में हो तो बॉम्बे में आहार वेदा है, मैं तो स्पेशली आती हूँ वहां पे खाना खाने के लिए। होल फूड, प्लांट बेस्ड, ग्लूटेन फ्री, शुगर फ्री रेस्टोरेंट ही है। तो ऐसे है, हर जगह है मैम, मिलेंगे ओके आपको भी। ओके मैम, और थैंक द यू सो बुक मच। एक्चुअली सेज कि यू कैन ईट, बट आप अगले दिन वो शेड्यूल में आ जाओ। दूसरे जो आपका है उसके लिए आपने खाना 8 के बजे 9 बजे खा लिया, आज रोज आप 7 बजे खा लेते हो, बट आपके फ्रेंड ने पार्टी रखी और खाना खाते खाते 9 बज गया है, तो वो एक दिन आप चला लो, उसके लिए गिल्ट में मत आ जाओ कि मुझे आज खाने में इतना लेट हो गया, ठीक है। बट ओके मैनेज इट ओके, ऑन द अदर डेज, डोंट मेक इट अ हैबिट। थैंक यू सो So, मच मैम। one question on, is it possible to get any lunch or dinner without sugar, salt, fat, or in minimal quantity? मिलता Anyways, है। बिल्कुल बिल्कुल मिलते हैं। और एज आई सेड अगेन, इट इज ऑल डिपेंडेंट ऑन कहाँ आप रह रहे हैं, आपकी लोकेलिटी में। अगेन these such questions can be answered better in our group. We are a strength of almost 220-225 people now, तो surely आपकी लोकेलिटी के भी लोग होंगे, and you can get this information. इंटरमिटेंट फास्टिंग पे हम नेक्स्ट सेशन में कवर करेंगे। और एक अनगा जी ने पूछा है कि ये सब रेगुलर मेंटेन कर पाना शायद डिफिकल्ट है, रेगुलरिटी नहीं आती। यस अनगा जी, उसी के लिए हमने ये सेशन, बस 1 बजे 1:15 बजे सेशन खत्म हो गया और हमारी मीटिंग खत्म हो गई, हमारा इंटरेक्शन खत्म हुआ, हम वो चीज नहीं कर रहे हैं। आप इस नॉलेज को इम्प्लीमेंटेशन में ला सकें, इसीलिए हमने हैबिट बिल्डिंग चैलेंज भी रखा है, विच इज फॉर 3 वीक्स। एंड जनरली 3 वीक्स तक आपने कोई चीज फॉलो कर ली तो आप उसको आगे कंसिस्टेंट कर पाएंगी, उसके चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। And we'll have format of the challenges in such a way that it will make it a little easier for you. So try it out. Do try it out. We come to the close of the session. Yes, next session is on February 2nd, which is Sunday, 12 o'clock, 12 noon. So, and please stay tuned in the group. Meenal ji, 9.5 years medicine free रह रही हूँ। गुरुजी डॉक्टर अरुण शर्मा 83 years के हैं। मीनल जी, आप अनम्यूट करके कुछ मार्गदर्शन दीजिए प्लीज। 9.5 साल मेडिसिन फ्री रहने का क्या राज है? अंचल वुड ऑल्सो अग्री कि वो तो बोलती थी कि मेरी दीदी ऐसी थी कि हर लारी पे खाती थी हर रेस्टोरेंट का पूरा मेन्यू मुझे पता था। तो हम दोनों ही बहुत ही भुक्कड़ फैमिली से आते हैं, वी जस्ट लव ईटिंग फूड। तो अगर हमारे जैसे लोग वी कैन चूज आवर हेल्थ, भाई चीटिंग आप किससे कर रहे हो? अगर आप रीफ्राइड ऑयल पानी पूरी खा रहे हो तो वो किसके शरीर में? अपने बच्चे के शरीर में डाल रहे हो, अपने शरीर में डाल रहे हो, किसके शरीर में डाल रहे हो? हु आर यू चीटिंग फाइनली? अपने आप से, अपने लव्ड वन से। किसको खिला रहे हो वो भुजिया, है ना? सो हम ये दुश्मन के साथ भी नहीं करना चाहेंगे, राइट? लाइक किसी को ऐसा चीज खिलाएं विच इज कार्सिनोजेनिक, ऐसा चीज खिलाएं विच इज नॉट हेल्दी फॉर देम। तो एक बार वो जो अंडरस्टैंडिंग आ जाती है, व्हेन यू स्टार्ट लिविंग इट, ये एकदम इजी डिसीजन हो जाता है। जैसे कोई वेजिटेरियन है, उनके आगे नॉनवेज रख दो, एकदम इजी डिसीजन होता है, ये तो मैं नहीं खाना है। कोई नॉनवेज भी है तो वो बोलेंगे नहीं मैं ऑक्टोपस नहीं खाता हूँ, मैं डॉग नहीं खाता हूँ। तो एवरी फूड इज अ चॉइस। किसी को बैंगन का भरता नहीं अच्छा लगता, वो बोलेंगे नहीं 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 दिस इज नॉट। तो हम लोगों ने ऐसे अपना फूड चॉइस कर दिया, बट इन दैट चॉइस वी ईट अ लॉट। हम दोनों जब खाने बैठते हैं और तो लोगों को विश्वास नहीं होता हम लोग इतना खाते हैं एंड हम लोग बहुत वंस यू स्टार्ट लिविंग इट, इसका सारा मैजिक ना विनीता जी करने में है। बिल्कुल, आई कैन अग्री, आई हैव एक्सपीरियंस माई सेल्फ। Yes. अभी So मैंने that's मेरी शेयरिंग magic. आज नहीं करी है, आज अपना टाइम हो गया है। Right. That's all. Thank you, Meenal ji. Thank you, Anchal ji. Thank you, all the participants. We end our session today, but our journey continues.
एंड चैट बॉक्स में चैनल की सोशल मीडिया लिंक्स और स्पेशली हमारा जो ये 21 डेज का जो प्रोग्राम है नरिश एंड फ्लरिश, उसका व्हाट्सएप ग्रुप कम्युनिटी का लिंक मैंने चैट बॉक्स में शेयर किया है. अगर आप वहां पे नहीं हैं तो प्लीज हमें ज्वाइन करिए फॉर two more such lovely sessions and the habit building activity which will make us consistent on our journey. So at the end of the session, let us have some affirmations. मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगी आप प्लीज अपनी आंखें बंद करें और इन affirmations को मेरे साथ दोहराएं और फिर उसके बाद हम अपने प्यारे हंसते हुए चेहरों पे जो इतनी प्यारी भरी मुस्कान है हमारी, उसके साथ हम विदा लेंगे. हैप्पी रिपब्लिक डे, हैप्पी वीकेंड, and we'll see we'll continue our journey together, but bye for now. So please close your eyes, please repeat after me. I am a beautiful soul, my body is my wealth and my treasure. मैं एक बहुत सुंदर आत्मा हूँ, मेरा ये शरीर मेरी पूंजी है, मेरा धन है. I am healthy and I do take good care of my body. मैं स्वस्थ हूँ, खुद का बहुत अच्छे से ध्यान रखता हूँ. I eat right, I think right. मेरी सोच और मेरा खाना दोनों सही दिशा में है. आई एम काम, आई एम लविंग, आई एम पीसफुल, आई एम हैप्पी. मैं शांत हूँ, मेरा जीवन सुकून में है, मैं प्रेम से पूर्ण हूँ और मैं बहुत खुश हूँ. विद दिस थॉट वी साइन ऑफ फॉर टुडे. बाय एवरीवन. बाय एवरीवन. चलिए, थैंक यू. bye bye. थैंक यू अंचल. Thank you for creating this. It happened just because of you. I'm not ओहो, obliged. Yeah. नहीं आपने बहुत सही चीज उठा के दी थी कि विनीता इसको करते हैं एंड विद समथिंग व्हिच आई कुड रिलेट बिकॉज आई हैड डन देयर वर्कशॉप. तो और मोस्ट इम्पोर्टेंट हम दोनों ने वो अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करके उसके चेंजेस देखे हैं. Right. सो वी बोथ वर सो कन्विंस्ड कि हम ये चीज एक सबके साथ शेयर करें. Thank और you. I was आप lingering since obviously so long, but you kept on holding it so it could happen. I'm so blessed. Thank you. अरे वो तो हर चीज के साथ करना ही पड़ता है, बट आप नहीं होते तो ये डिकोडिंग ऑफ इम्पोर्टेंट वे ऑफ लाइफस्टाइल आई वुड से, वो उसकी डिकोडिंग उसको सिंप्लीफाइड तरीके से आप लेके आ पाए हो. दैट्स सो नाइस एंड सो ग्रेट. I try to cover up क्योंकि बुक के एसेंशियल चैप्टर्स यही बिल्कुल थे. So I try to cover बिल्कुल next time बिल्कुल. के लिए. चलिए, thank you. Bye Thank you. everyone. We can थैंक leave. यू रूपल जी. थैंक यू एवरीवन. Hemlata is my mama. ओह नमस्ते आंटी. चलिए. ग्रेट. Okay, bye थैंक bye. यू.